نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد إن هدى الله هو الهدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا لیکچر نمبر 7 شروع کریں گے، اور آج کے اس تجوید کے لیکچر میں ہم جانیں گے کہ مد کس کو کہتے ہیں، اور یہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ قرآن پڑھتے وقت جو قاری حضرات لمبا پڑھتے ہیں، آواز کو تھوڑا باہر نکالتے ہیں اور اس آواز میں کافی زیادہ لمبائی دیتے ہیں، یہ لمبائی کس وجہ سے دی جاتی ہے اور یہ کہاں کہاں یہ مد ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج کا لیکچر آج کا یہ جو تجوید کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مد کا بیان۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ مد کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، عام معنی میں مد کہتے ہیں کسی چیز کو لمبا کرنا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم چونکہ تجوید پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے تجوید کے معنی میں مد کہتے ہیں آواز کا لمبا کرنا، یعنی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کچھ حروف ہمارے حروف الہجا میں ایسے ہیں جو لمبے کیے جاتے ہیں، جن کی آواز لمبی ہوتی ہے، اور اس لمبائی کو ہم کہتے ہیں مد کا بیان، یعنی مد کا کرنا۔ تو عام معنی مد کا ہوتا ہے لمبا کرنا، اور یاد رکھنا چاہیے کہ مد جو ہوتی ہے وہ صرف 3 حروف پہ مد ہو سکتی ہے، یعنی 3 حروف صرف لمبے ہوتے ہیں، یا عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حروف المدہ ہے وہ صرف 3 ہے۔ کون کون سا حرف ہے؟ ایک ہے الف، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہے الف۔ الف الف تبھی الف ہوتا ہے جب وہ خالی ہو، یعنی جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں قالو میں جو واو کے بعد جو یہ الف لکھا ہوا ہے، اس پہ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ الف ہے۔ تو حروف مدہ میں سے ایک تو یہ الف ہے، جبکہ اس سے پہلے زبر ہو۔ جب بھی آپ الف سے پہلے زبر دیکھیں، یاد رکھنا چاہیے الف جو ہے یہ حرف مدہ ہے، یعنی اس پہ مد ہوگی۔ دوسرا حرف مد جو ہے وہ ہے واو۔ واو ساکن، اور ساکن کے پہلے جب واو سے پہلے حرف والے پہ پیش ہو، اس وقت واو ہمارے پاس مدہ ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں واو مدہ۔ اسی طرح تیسرا حرف جو ہے جو حرف مدہ میں ہے یا حروف مدہ میں ہے وہ ہے یا۔ تو یا جو ہے یہ بھی حرف مدہ میں ہے، یا جیسے چھوٹی یا لکھا جاتا ہے، اور یہ کب کس صورت میں حرف مدہ ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ یعنی بنیادی طور پہ جو بات ہمارے سمجھ میں آ گئی، جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کی تعداد جو ہے وہ 3 ہے۔ عام زبان میں صرف ان 3 حروف پہ مد ہو سکتی ہے، یا صرف یہ 3 حروف لمبے ہوتے۔ ایک ہے الف، جب الف سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے واو ساکن،
जब वाव साकिन से पहले पेश हो, तीसरा है या जब या साकिन से पहले जेर हो। इस सूरत हाल में जब अलिफ वाव और या हो, इनको हम कह सकते हैं ये है हुरूफ मद्दा। अलिफ हुरूफ मद, वाव हर्फ मद और या हर्फ मद, तीनों को मिला के हम कह सकते हैं हुरूफ मद्दा। जिसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं नून ज़बर ना, अगर नून के साथ अलिफ को मिलाएंगे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं और अलिफ से पहले ज़बर है तो हम पढ़ेंगे ना। ना, आप देखिए अलिफ को हमने लंबा किया, नून ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना, हमने इसको लंबा किया, अपने आवाज से ऊंचा किया। एक और मिसाल बा ज़बर बा, जब बा के साथ आप अलिफ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बा, यानी अलिफ को हमने लंबा किया। इसी तरह कौफ की मिसाल, वाव की मिसाल ले लीजिए। वाव साकिन है, माकबल यानी इससे पहले हर्फ पर पेश है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कौफ पेश कू, मगर काफ वाव पेश कू, वाव साकिन माकबल पेश तो वाव मद्दा। एक और मिसाल, वाव साकिन माकबल हर्फ पे पेश है, फा पे पेश है, बन गया फू, तो ये वाव मद्दा हो गया जब वाव साकिन माकबल पेश। इसी तरह तीसरी मिसाल है या साकिन माकबल जेर। मिसाल के तौर पर खा जेर खी, खाया जेर खी, खी, आप देख रहे हैं कि या को मैंने लंबा किया। क्यों लंबा किया? क्योंकि या साकिन से पहले जेर है, जिसको हम कह सकते हैं या साकिन माकबल जेर। इसी तरह एक और मिसाल, यहाँ वाव की मिसाल है, वाव साकिन माकबल पेश, जिम पे जू, जिम वाव पेश जू। यहाँ पर अलिफ की मिसाल, शिन ज़बर शा, शिन अलिफ ज़बर शा। यहाँ या की मिसाल, शिन जेर शी, शिन या जेर शी। यहाँ पर या की मिसाल, ज़ा जेर ज़ी, ज़ा या जेर ज़ी। आप देख रहे हैं मैं लंबा कर रहा हूँ। वाव की मिसाल, तो पेश टू, तो वाव पेश टू। इन तमाम मिसालों से हमें ये समझ में बात आ गई कि हुरूफ मद्दा जो है, यानी ऐसे हुरूफ जिन पे मद हो सकती है, जिन पर मद आती है, वो सिर्फ तीन है, वाव, अलिफ, या। आप हुरूफ इल्लत भी उनको कहते हैं, अरबी में उनको हम हुरूफ इल्लत भी कहते हैं, हुरूफ मद्दा भी कहते हैं। हुरूफ मद्दा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं तीन हुरूफ पे मद होती है। अलिफ पे तब मद होगी जब अलिफ माकबल ज़बर हो, अलिफ खाली होगा। अगर अलिफ पे ज़बर जेर पेश जज़म आप देखेंगे तो वो अलिफ नहीं होगा, वो हमजा होगा। इसी तरह वाव, वाव साकिन माकबल पेश तो वाव मद्दा है, या साकिन माकबल जेर तो या मद्दा है। तो जब भी आप इन तीन हरूफ में से कोई हरफ इस कंडीशन में देखें, अलिफ खाली हो, माकबल ज़बर हो, वाव साकिन माकबल पेश हो, या साकिन माकबल जेर है, जेर हो, तो याद रखना चाहिए इन पे मद्दा है, ये मद्दा है। और इस मद को जो नॉर्मल हालत में मद होती है, इसको हम कहते हैं मद असली। यानी मद असली वो मद है जो एक्चुअल मद है, असली मद है। इसको अरबी में हम मद तबई भी कहते हैं, मद तबई या मद असली। यानी ये मद इन हरूफ के साथ ओरिजिनली है, इन हरूफ के साथ ओरिजिनली है जब ये हरूफ अपने कंडीशन में हो, अलिफ माकबल ज़बर, वाव साकिन माकबल पेश, या साकिन माकबल से। तो इस तरह की मद को हम कहते हैं मद असली या मद तबई। और याद रखना चाहिए ये मिसालें जो है ना, इन तीन मतलब मदों की मिसाल, मद असली, मद फ़रई, चाहे अलिफ की हो, वाव साकिन माकबल पेश हो, या साकिन माकबल ज़ेर हो, ये आप कुरान मजीद में तकरीबन हर एक लाइन में, हर एक आयत में दो दो तीन तीन बार ये मिसालें आप पाएंगे। इंशाल्लाह हम आज मशक भी करेंगे, आपको ये क्लियर होगा। अब जो हम मद बयान करते हैं, एक किस्म तो मैंने आपके सामने बयान की, मद तबई या मद असली। ये ऐसी मद है जब अलिफ माकबल ज़बर हो, वाव साकिन माकबल पेश हो, या साकिन माकबल जेर, उस मद को हम सिंपली कह सकते हैं मद असली। और इसको लंबा सिर्फ एक अलिफ के बराबर करना। एक अलिफ का मतलब होता है दो हरकत। उसको कैसे आप मेजर करें, जैसे ये उंगली है, इस उंगली को नॉर्मल तरीके में जब हम बंद और खोलेंगे
बंद और खोलेंगे, ये आप मान लीजिए मिकदार 1 अलिफ, यानी ये जो उंगली है इसको आप बंद कीजिए, खोल दीजिए नॉर्मल तरीके से। इस बंद और खोलने को कह सकते हैं 1 अलिफ। जैसे बा, नॉर्मल बंद किया खोल दिया, ये है 1 अलिफ। बा, बू, बी, यानी ऐसी मद जो सिर्फ 1 अलिफ के बराबर हो, इसको हम कह सकते हैं मद असली। और आबिद साहब ने बहुत अच्छी मिसाल यहाँ दी कि तीनों हरूफ मद्दा को हम एक ही हरफ में कैद कर सकते हैं, वो है नू ही हा। एक बार मैंने आपके सामने बयान किया था जब हम तजवीद पढ़ रहे थे, क्योंकि तीनों जो हरूफ मद्दा है इनका जो मखरज है ना वो जौफी दहन है, अल जौफ है। नू या की मिसाल, वाव की मिसाल, नू ही या की मिसाल, हा, नू ही हा। तो तीनों जो मद है ना जिनको हम कहते हैं मद असली, वो इसी लफ्ज में कैद है, नू ही हा। एक लफ्ज याद रखिएगा, आपको तीनों हरूफ मद्दा याद रखेंगे। इसके बाद हमारे पास मद की एक और किस्म है, इसको हम कहते हैं मद फरई। ये मद फरई क्या है इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम करेंगे थोड़ी सी मशक मद असली की, मजीद मशक हम करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ हरूफ आपके सामने लिखे हैं, आपको पहचानना है कि यहाँ पर मद असली कहाँ पर है। देखें, हावियतुन, यहाँ जो मद असली है वो ये अलिफ, क्योंकि अलिफ से माकबल जबर है। फला, आप देख रहे हैं मैंने पढ़ा फला, ये जो अलिफ इसको लंबा किया गया, अलिफ से पहले जबर, तो मद असली यहाँ पर है, मद असली 1 अलिफ के बराबर। शानिअका, मा, आप देख रहे हैं मा, गासिकिन, गा मद असली। इदा मद तबीई या मद असली। लना मद असली अलिफ। बिहिजारतिन, जा मद असली। मालुहु, मा मद असली अलिफ पर। हासिदिन, हा मद असली। आप देख रहे हैं मैं कैसे मिसालें दे रहा हूं उनकी। तो आमी मद असली। नारन मद असली अलिफ। काना, यहाँ पे भी मद असली। अबाबीला, देखिए यहाँ पर 2 मद असली है। अबा, एक है अलिफ माकबल जबर, दूसरा है या, बा साकिन माकबल, या साकिन माकबल जेर, या साकिन माकबल जेर, ये भी यहाँ पर मद असली है। अबाबीला। आबिदुन मद असली। लिसानन अलिफ मद असली। लयालिन अलिफ मद असली। खातिअतिन, खा मद असली। फआबा, ये देखिए अलिफ साकिन, अलिफ माकबल जबर, मद असली। रा, रादियतन, दी, रादियतन, रा मद असली। तो यहाँ पर आपने देखा कि मद असली जो है ये असलन हरफ के अंदर है, इसको सिर्फ 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है, ज्यादा लंबाई हमें ज्यादा खींचना नहीं है। और ये मद असली जो है ये मैंने आपके सामने बयान किया कि ये सिर्फ या तो अलिफ होगा माकबल जबर, वाव साकिन माकबल पेश, या साकिन माकबल से, इसको हम कह सकते हैं मद असली। अब मद असली के बाद मैंने आपके सामने बयान किया था हमारे पास दूसरी मिसाल जो है वो है मद फरई। अब हम सीखेंगे मद फरई किसे कहते हैं। देखिए, याद रखना चाहिए मद फरई उस मद को कहते हैं जब हमारे पास हरफ मद हो, हरफ मद से मुराद अलिफ हो माकबल जबर, वाव हो वाव साकिन माकबल पेश, या साकिन माकबल से। जब इन 3 हरूफ में से कोई हरफ हमारे पास हो, उसके बाद हमारे पास सबब मद हो। याद रखिएगा, मद फरई की भी मिसाल आपके सामने क्या है। मद असली बिल्कुल आसान है, हमारे पास हरफ मद है तो मद असली होगी। अब मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं मद फरई, और मद फरई की जो मैं आपके सामने तफसील बयान कर रहा हूं वो ये है, मद फरई उस मद को कहते हैं जिसमें हरफ मद के साथ कोई ना कोई सबब मद हो। सबब मद याद रखिएगा, सबब मद मतलब रीजन, कोई ना कोई ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से ये मद असली जो है वो तब्दील होती है मद फरई में। यानी मद असली अगर हम सिर्फ 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, मद फरई को 2 से लेके 6 अलिफ तक लंबा करना। इसीलिए आप देखते हैं कि
कारी जो है बहुत लंबा करते हैं कहीं पे, और आप उस मद को, उसकी निशानी भी होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो दूसरी मद जो हमारे पास है वो है मद फरई। मद फरई किसको कहते हैं? जब हमारे पास हरफी मद हो, कोई भी इनके इन तीन में से कोई, चाहे अलिफ हो, चाहे वाव हरफी मद्दा या हरफी मद्दा हो, उसके बाद हमारे पास सबबी मद हो, और हमारे पास दो असबाब है जिनको हम कहते हैं सबबी मद। एक है हमजा, दूसरा है सुकून। सुकून मतलब जज्म। अगर हमारे पास हरफी मद के पास हमजा आए या सुकून आए, उस वक्त उस मद को हम कहते हैं मद फरई। बहुत आसान है। तो मद असली के बाद, इन हरूफ के बाद, यानी मद असली के फौरन बाद अगर आप देखेंगे कोई सबब, तो सबब हमारे पास दो है, चाहे वो हमजा हो चाहे वो सुकून हो। हमजा आप देख सकते हैं छोटी आइन की शक्ल में होता है, सुकून आप देख सकते हैं जज्म हो। तो इन दोनों में से अगर कोई भी चीज हो हरफी मद के बाद, उस मद को हम कहते हैं मद फरई। ठीक है, उस मद को कहते हैं मद फरई। मिसाल के तौर पर यहां आप देखिए, यहां पर हमने लिखा है या। देखिए अब मैंने या को एक अलिफ से ज्यादा लंबा किया, मैंने इसको 3 या 4 अलिफ की तरह लंबा किया। कैसे? या। आप देख लीजिए मैंने इसकी आवाज को लंबा किया। ये मैंने लंबा क्यों किया? वजह यह है कि आप देख सकते हैं या यानी जीम के साथ अलिफ है, तो हरफी मद तो है, इसके फौरन बाद सबब है, और सबब यहाँ पर कौन है? हमजा। मैंने आपके सामने अर्ज किया है कि सबब दो हो सकते हैं, या हमजा हो सकता है या जज्म सुकून हो सकता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमजा है, तो हरफी मद के बाद सबब मद साथ में है, तो हम यहाँ पर मद जो लाएंगे इस मद को हम कहेंगे मद फरई। मद फरई याद रखिएगा। पहली मद को हमने नाम दिया मद असली, इसको हमने नाम दिया मद फरई। मद फरई वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद सबब मद पाया जाए, और सबब मद कौन है? या तो हमजा है या फिर सुकून है, जज्म। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं या। आप देख लीजिए मैंने जो ये आवाज लंबी की, तकरीबन 3 से 4 अलिफ मैंने आवाज को लंबा किया। एक और मिसाल, सू उन। आप देख लीजिए मैंने सू उन नहीं पढ़ा, मैंने उसको लंबा किया, सू उन। ठीक है, क्योंकि वाव साकिन माकबल पेश, तो वाव मद्दा हो गया, उसके बाद फौरन मेरे पास सबब आ गया। उस सबब को हमने कौन सा सबब है? जज्म, ये सुकून। यहाँ पर सुकून आप देख लीजिए, ये है हमारे पास सबब। तो हरफी मद के बाद हमारे पास फौरन हमारे पास सबबी मद आ गया, तो हमारे पास ये जो मद है ये मद फरई। इसी तरह एक और मिसाल है सीअत। आप देख लीजिए या साकिन माकबल जेर, या मद्दा है, मद असली है, उसके फौरन बाद आप देख लीजिए हमारे पास हमजा है, तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी मद है? मद फरई। तो बुनियादी तौर पर हमें पता चला मद कहते हैं लंबा करने को, और ये मद सिर्फ हुरूफ मद्दा में हो सकती है, अलिफ माकबल जबर, वाव साकिन माकबल पेश, या साकिन माकबल जेर। क्लियर? इस पे जो मद होती है असलन उसको कहते हैं मद असली या मद तबई। तबई या तबई। उसके बाद हमने देखा कि एक और किस्म है मद की जिसको हम कहते हैं मद फरई। अच्छा, मद असली की जो मिकदार है वो सिर्फ एक अलिफ है, जबकि मद फरई जो है वो 2 से लेके 6 अलिफ तक लंबा की जाती है। अब मैं बताऊंगा कौन सी अलिफ कितनी लंबी हो जाती है। मतलब मद फरई जो है वो मद असली के मुकाबले में काफी लंबी है। और मद फरई किसको कहेंगे? जब हमारे पास हरफी मद के बाद कोई सबब हो। सबब कौन से हैं? या तो हमजा होगा या फिर हमारे पास सुकून होगा। अब हरफी मद के बाद कौन सा सुकून हमारे पास है या कौन सा सबब हमारे पास है? मद फरई की मजीद किस्में। ठीक है, मद फरई की मजीद किस्में हैं। किस बुनियाद पर? कि हरफी मद के बाद कौन सा सबब। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं आपके सामने बयान करूं। एक तो हमने जाना कि मद असली, दूसरा हम अब जान रहे हैं मद फरई। मद फरई के बारे में मैंने आपको कहा कि मद फरई ऐसी मद है जिसके बाद हरफ मद के बाद हमारे पास कोई ना कोई
उसका सबब हो, और सबब हमारे पास सिर्फ दो है, या तो हमजा होगा या फिर सुकून होगा। अब आप जान लीजिए जो मद फरई है, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मद फरई की बेसिकली चार किस्में, याद रखना चाहिए। मद फरई की चार किस्में, किस बेस पर कि हरफ मद के बाद कौन सा सबब। पहली किस्म जो मद फरई की है उसको कहते हैं मद मुत्तसिल। मद मुत्तसिल क्या होता है? मुत्तसिल जब हरफ मदा के बाद उसी कलमे में हमजा हो। जैसे मिसाल के तौर पर या जो है ये एक ही कलिमा, हरफ मद आप देख रहे हैं अलिफ है, और सबब मद देख रहे हैं वो सुकून है, और ये दोनों एक ही कलिमे में। इसी तरह सूउन वाव साकिन माकबल पेश हरफ मद है और इसका सबब मद सुकून है, और ये एक ही कलिमे में। इसी तरह आप देख रहे हैं सीअत हरफ मद या है, या साकिन माकबल जेर, सबब मद ये देख लीजिए हमजा है, और ये एक ही कलिमे में। इस मद को कहते हैं मद मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। हरफ मद के बाद सबब मद, वो भी हमजा और एक ही कलिमे में, ऐसी मद को कहते हैं मद मुत्तसिल। इसका दूसरा नाम है मद वाजिब। मद मुत्तसिल का नाम दूसरा है मद वाजिब। तीन मिसालें आपके सामने हैं, और इस मद को तकरीबन 4 हरकत या 2 अलिफ या 3 अलिफ के बराबर भी लंबा करते हैं। मिसाल जाअ, सूउन, सीअत, 4 हरकत यानी 2 अलिफ या 6 हरकत, 3 अलिफ के बराबर इस मद को हम लंबा करते हैं। ठीक है। अब दूसरी मद जो किस्म है मद फरई की, उसको कहते हैं मद मुनफसिल। बहुत आसान है ये कौन सी मद है? जब हमारे पास हरफ मद के बाद सबब मद दूसरे कलमे में हो। देखिए यहां पर देखिए, इन्ना अअतयनाका, इन्ना जब आप देख रहे हैं, इन्ना के साथ जो ये अलिफ है, क्योंकि अलिफ माकबल जबर तो हरफ मद है, ठीक है। उसके बाद अअतयना का जो है ये दूसरा कलमा है, और अअतयना का जो ये पहला देख रहे हैं ना अलिफ के ऊपर जबर, ये असल में हमजा है। क्योंकि मैंने आपके सामने अर्ज किया था अलिफ तभी अलिफ है जब वो खाली हो। अगर अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश, वो अलिफ नहीं, वो हमजा है। तो यहाँ पर भी हरफ मद के बाद सबब मद हमजा है, मगर वो हमजा एक तो अपनी शक्ल में नहीं, दूसरा वो दूसरे कलमे में, इसीलिए इसको कहते हैं मद मुनफसिल। मुनफसिल का मतलब जब इनमें फासला हो, हरफ मद के बाद सबब मद अलग अलग कलिमात में इनमें फासला हो। मुत्तसिल का मतलब यह है कि एक ही कलमे में। बहुत ही आसान याद रखना है। और इस मद को, मद मुनफसिल को, यानी जो किस्म है एक मद फरई की, इसको मद जायज भी कहते हैं, और इसको भी 4 हरकत या 3 या 2 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। जैसे इन्ना अअतयनाका क़ालू आमन्ना फी अनफुसिहिम। ये देख लीजिए, फी या साकिन माकबल ज़ेर मद असली, मगर इसके फौरन बाद हमारे पास हमजा है बशकल अलिफ, क्योंकि अलिफ के ऊपर जबर तो ये हमजा हो गया। और ये जो अनफुसिहिम है ये दूसरे कलमे में, हरफ मद एक कलमे में, सबब मद दूसरे कलमे में। इस मद को हम कहेंगे मद मुनफसिल। ठीक है। और मिसालें आपके सामने ये होगी। तो मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, ये दो मदें हैं। फिलहाल 2 किस्में मद फरई की। मद फरई के बारे में ये जाना हमने कि हरफ मद के बाद सबब मद दूसरे कलिमे में, मद फरई जो है उसके असबाब होते हैं हरफ मद के बाद। और मद फरई की 4 किस्में हैं। मद मुत्तसिल, जब हरफ मद के बाद सबब मद हमजा की शक्ल में हो एक ही कलिमे में, इसको मद वाजिब भी कहते हैं, और इसको 4 हरकत या 2 अलिफ या 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। जबकि हमारे पास मद मुनफसिल है, जब हरफ मद के बाद सबब मद दूसरे कलमे में हो, और इस मद को हम मद जायज़ कहते हैं। इसको भी हम बकदर 4 हरकत या 2 अलिफ या 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि जो मद मुत्तसिल या मद मुनफसिल है ना,
इसको दिखाया भी जाता है, इसको लिखा भी जाता है। आप जब मुसहफ खोलेंगे, कुरान मजीद खोलेंगे, उसमें आप देखेंगे ये मदें बनी हुई होती है, जबकि हर्फ मद, सिर्फ हर्फ मद जब मद असली हो उसको इंडिकेट नहीं किया जाता, जबकि मद फ़रई की ये जो दो किस्में हैं, मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल, इनको इंडिकेट किया जाता है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब हम मिसालें देंगे और बाकी जो मदों की किस्में हैं वो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये हम एग्जाम्पल देंगे कुछ मदों की, मद फ़रई की। आप ज़रा पहचानिए, जलाल साहब है या ये जो हमारे पास दूसरे आबिद साहब है या कोई भी जो हमारे पास मेल मेंबर्स है, वो अगर अपनी माइक खोले तो मुझे बताइए ये कौन सी मद आपको लग रही है। आप जलाल साहब या आबिद साहब अपनी माइक आप ऑन करें ताकि अगर कोई मद की मिसाल आ जाए तो मैं आपको बताऊं। जो भी मेल हजरात है वो बताएं, अगर हमारी जो बहनें हैं वो चैट बॉक्स में बता सकती हैं और आप मेरे साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। देखिए, माअन, मुझे बताइए माअन में आपको कौन सी मद लग रही है? पहले बताइए ये मद असली है या मद फ़रई है? ये मद असली नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये मद फ़रई है। देखिए, मद असली तब होता जब सिर्फ हर्फ मद होता। आप देख रहे हैं हर्फ मद के बाद हमजा है, सुकून, ये हमजा है बिल्कुल। मद असली के बाद जब आप सुकून देखेंगे या हमजा देखेंगे, यहाँ तो हमजा है, इसको हम बताएंगे ये मद फ़रई। ठीक है, अगर सिर्फ माँ होता, अन न होता, तब ये मद असली। जलाल साहब समझ में बात आ रही है? इसी तरह है जाअती। आप मुझे बताइए जाअती, जलाल साहब ये कौन सी मद आपको लग रही है? मद असली है या मद फ़रई है? ये भी फ़रई, मद फ़रई है। क्यों आपको लग रहा है मद फ़रई है? हमजा जी, हर्फ मद के बाद, यानी हर्फ मद के बाद हमारे पास सबब जो है, सबब वो हमारे पास ये हमजा है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि मद फ़रई की कौन सी किस्म है? हमने दो किस्में पढ़ी। एक हमने पढ़ा मद फ़रई की किस्म जिसको कहते हैं मुत्तसिल, दूसरा हमने पढ़ा मुनफसिल। एक होता है फासला हर्फ मद और सब मद के बाद में, दूसरा होता है फासला नहीं। मुत्तसिल का मतलब होता है एक ही कलमे, मुनफसिल का मतलब होता है अलग अलग कलमे। तो जाअती में कौन सी मद है? मुत्तसिल, ये मुत्तसिल है, मद फ़रई मुत्तसिल। माशाअल्लाह, मद मुत्तसिल भी इसको कह सकते हैं। और इसको हमें लंबा करना है 4 हरकत या 2 या 3 अलिफ के बराबर। इसी तरह आप देखिए फीहा अबदन, जलाल साहब बताइए फीहा अबदन में ये मद फ़रई है या ये मद असली है? ये फ़रई है मगर इसमें दूसरे कलीमे पे माशाअल्लाह, ये मद फ़रई है। और मद फ़रई की कौन सी किस्म है? मुनफसिल है या मुत्तसिल है? मुनफसिल का मतलब होता है फासला वाला, मुत्तसिल का मतलब होता है एक ही फासला वाला। जी, मुनफसिल याद रखना चाहिए। इन अल्फाज को थोड़ा आपको जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो साथ साथ में लिखिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। माशाल्लाह, ये मद फ़रई है और मद फ़रई में मद मुनफसिल है, क्योंकि हर्फ मद जो है वो फीहा है और सबब मद अबदन अलग कलिमा, हमजा जो है यहाँ पर। अच्छा, जो हमारे पास आबिद साहब है, जरा बताइए हुनफा, ये हुनफा में जो फा के साथ अलिफ है, इस पे मद असली है या मद फ़रई है? जी आबिद साहब। इसके साथ मद असली है, फिर हमजा आ रहा है। नहीं, आप इसको मद मद असली ना है, कहें इसके ना, साथ फिर हमजा आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसा ना कहें। मैं आपको यही से तो जवाब दे रहा हूँ, मद असली है या मद फ़रई? हुनफा में जो मद है ये मद फ़रई है। असली का नाम ही ना ले, क्योंकि असली तब है जब इसके साथ सबब ना हो। इसमें तो सबब साथ में है ना, अब ये मद असली रही नहीं। ठीक है, आप बताइए ये मद फ़रई है। अब मुझे बताइए मद फ़रई में ये मद मुनफसिल है या मुत्तसिल है? मद मुत्तसिल है सर। जी, ये मद मुत्तसिल है। मद फ़रई की किस्म कौन सी है? मुत्तसिल, क्योंकि हर्फ मद के बाद सब मद एक ही कलमे में। ठीक है, शाअ, जलाल साहब आप बताइए शाअ में कौन सी मद है? अलिफ पर मद असली है या मद फ़रई?
فرعی مد یہ فرعی فرعی ہے جی. اچھا مد فرعی میں یہ مد منفصل ہے یا مد متصل ہے؟ متصل. مد متصل. ماشاءاللہ. دیکھیے یہ مثالیں جب آپ کریں گے آپ کو آسان ہوگا. یہ اردو ورڈز کی وجہ سے غسان یہ بھی مد متصل ہے، مد فرعی ہے. وراء یہ بھی مد متصل ہے، مد فرعی کی قسم. عائلن یہ بھی مد فرعی ہے متصل. جزاء مد فرعی متصل. ہا اب بتائیے یہ ہؤلاء، مجھے بتائیے یہ ہؤلاء یہ ہا کے اوپر کون سی مد ہے؟ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے؟ مد متصل ہی ہے سر. نہیں، پہلے جو ہا کے اوپر ہے نا یہ ہؤلاء یہ الگ الگ مد. ٹھیک ہے. ہؤلاء یہاں پر یہ کون سی مد ہے، متصل یا منفصل؟ جی بتائیے متصل ہے یا منفصل ہے؟ پہلے یہ بتائیے یہ مد عارض ہے، سوری ناٹ مد عارض، یہ مد اصلی ہے یا مد فرعی ہے؟ مد فرعی. مد فرعی. اب مجھے بتائیے یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل. یہ دونوں متصل ہے. ماشاءاللہ. ہؤلاء یہاں پر بھی یہی ہے. حدائق یہاں پر بتائیے کون سی مد ہے، فرعی ہے یا اصلی ہے؟ فرعی. فرعی ہے. اور متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل ہی ہے. متصل. وجاء یہاں پر بتائیے مد فرعی ہے یا اصلی ہے؟ مد فرعی ہے اور متصل ہے. متصل ہے. ماشاءاللہ. تو اس طرح آپ کو تھوڑا سا اب جب پریکٹس کریں گے سمجھ میں آئے گا. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. اب ہم آج پڑھیں گے سورۃ النصر. میں پہلے پڑھوں گا، اس کے بعد جلال صاحب یا دونوں میں سے کوئی ساتھی پڑھیں گے. اس میں آپ کو بتاؤں گا مد ہمارے پاس آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ. تھوڑے قواعد کے بارے میں آئیں گے. اذا دیکھیں ذال کے ساتھ جو الف ہے یہ صرف حرف مد ہے، اس کے بعد سبب مد ہے نہیں. تو یہاں پر جو ذال کے ساتھ الف ہے اس پہ جو مد ہے یہ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے جلال صاحب. جاء یہاں پر حرف مد جا کے ساتھ ہے اور ساتھ میں ہی سبب مد ہے اور ایک ہی کلمے میں. تو یہ مد فرعی ہے. مد فرعی کی کون سی قسم؟ مد متصل. متصل. ٹھیک ہے. متصل. نصر اللہ. دیکھیے اللہ کا جو لام ہے اس کے اوپر بھی الف ہے مگر اس الف کے بعد کوئی سبب ہے نہیں تو یہ بھی مد اصلی ہے. نصر اللہ. اللہ لمبا کر رہے ہیں نا ایک لیے. والفتح. اب آپ یہاں سوال پوچھ سکتے ہیں یہ بھی تو الف ہے اور اس الف سے پہلے بھی زبر ہے تو یہاں پر کیوں ماد نہیں؟ وجہ یہ ہے اس الف کے بعد یہاں جزم ہے تو یہ جو واو ہے یہ لام کے ساتھ ملے گا. الف جو ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا اسی لیے یہاں پر مد ہے نہیں. اس کو ہم مزید پڑھیں گے جب ہم انشاءاللہ گرامر کی کلاسز کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گا یہ کب ہوتا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. دیکھیں نون کے ساتھ جو الف ہے نا نون پہ زبر ہے اس کے بعد الف ہے تو یہاں پر بھی مد اصلی ہوگا. اچھا وَرَأَيْ بتائیے یا ساکن ما قبل زبر یا پہ کیا ہے؟ یا لین. یا لین ہے. جلال صاحب یاد رکھیے گا یا لین ہے. یا ساکن ما قبل زبر یا لین. یا ساکن ما قبل زیر اگر ہوتا تو یا مدہ. ید خلون بتائیے دال ساکن ہے کیا ہو رہا ہے؟ ید قلقلہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا قطب جد قاف طا با جیم دال جب ان پہ جزم ہو تو اس پہ قلقلہ ہوتا ہے. ید خلون بتائیے واو ساکن ما قبل پیش اس کے بعد کوئی سبب ہے نہیں
तो यहाँ पर कौन सी मद है? मद असली। मद असली, क्योंकि कोई सबब है नहीं। फी या साकिन माकबल जेर, उसके बाद कोई सबब नहीं, तो यहाँ पे कौन सा होगा? मद असली। दीनिल्लाही, या साकिन माकबल जेर और उसके बाद कोई सबब नहीं, क्या है? यहाँ पर भी मद असली। मद असली। देखिए ना मद असली कितनी बार आ रही है। दीनिल्लाही, यहाँ पर भी मद असली। अफवा मद असली। या यहाँ पर भी मद असली। फसब्बिह, हा का मस्तहलक, बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, इन्नहु उल्टा पेश वाव साकिन माकबल पेश के बराबर है, इस पे भी मद असली। काना अलिफ पे मद असली। तव्वाबा, यहाँ पर भी मद असली, यहाँ पर भी मद असली। तो आज हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इस पे मैं ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिएगा, अगली बार हम थोड़ा लेक्चर स्लो करेंगे ताकि आप भी इंशाल्लाह मेरे साथ इसको पढ़ें। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।